Hi guys, so today we will start the new organelles and the plastids. So first of all, what is plastids? Plastids are some organelles which have the different pigments, or they function as a storage room, like so they store the food, they have some pigments and they are colored or colorless. There are so many things or so many organelles which are present in mostly in plant cell. Okay, in animal cell there are the lake of plastids, or there are very small amount, like some euglenoids are there, means euglena, who have the plastids, like they have the chlorophyll and they have chloroplast for photosynthesis. So उसको plastids बोलते हैं, which are colorless or colored. Okay, so उसमें different kinds के organelles होते हैं. First of all, the plastids are of three type. The first is the chloroplast. So chloroplast, why it's called chloroplast? Because they have chlorophyll and carotenoids. So chlorophyll is green colored. Okay, so and they have the major pigment is chlorophyll. That's why it's called chloroplast. Okay, the leaf color of plant is due to the chloroplast. Okay, now the second thing is chromoplast. The chromoplast have the carotenoid as a chief pigment. Okay, they have the pigment and they form the different colors like yellow, orange, red. Okay, so they are chloroplast or chromoplast. Okay, they produce the color in plant cell, in plant organs like flowers, like फ्रूट्स. उनमें जो भी कलर होता है वो कलर प्रोड्यूस करने का काम है क्लोरोप्लास्ट का. ओके, देन नाउ द लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट. Leucoplast generally they don't have any color and they don't have any pigments. They are the responsible for storage of food. They store the food, and according to their storage they are the different types. Okay, so if they store the carbohydrate, that called the amyloplast. Okay, second thing, if they store the oil or fat, it's called aeoplast. Okay, and last one, they store the protein, it's called aleuroplast. Okay, aleuroplast, aeoplast and amyloplast. So according to their storage of food, if they store the different food, then the name are the different. Okay, now we are focusing on the chloroplast. हम खास करके देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट लीफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, लाइक वो algae है तो उसमें भी है, वो यूग्लिना है तो उसमें भी है, एंड देन प्लांट सेल सारे प्लांट में है. बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स इज the number of chloroplasts are different according to the cell location. If the cells are present in leaf, then the chloroplasts are large in number. Okay, but in the root cell there are the less number of chloroplasts are there. Okay, so जो प्लांट सेल की लोकेशन क्या है, अगर वो रूट में है, अगर वो स्टेम में है, अगर वो लीफ में है, सो उसके अंदर उनकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्लोरोप्लास्ट के कितने नंबर है, कितने क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, वो हम बता सकते हैं. लेकिन ये बात हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि अगर जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा हो तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लार्ज इन नंबर होगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू the structure of chloroplast. Okay, chloroplast का structure क्या है? First of all, the length is 5 to 10 micron. 5 to 10 micron की length है, and then the width is 2 to 4 micron. Okay, generally it is variable, but mostly chloroplast में इतना होता है, 5 to 10 के बीच में उसकी length होती है. Next, there are the two outer layers like mitochondria. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे दो लेयर्स थे, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी
टू लेयर्स, दो लेयर है, ओके, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. नाउ द इनर लेयर के अंदर का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट इज द स्ट्रोमा, द स्पेस इज द स्ट्रोमा, एंड देयर आर द बंच ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स का जो बंच होता है उसके जैसी जो स्ट्रक्चर है उसको बोलता है ग्रेना, ओके. और द प्लूरल इज ग्रेनम. ग्रेनम इज अ सिंगल, ओके, एंड सॉरी सिंगुलर इज ग्रेनम एंड द प्लूरल इज ग्रेना, ओके. कितने सारे होते हैं, अगर ज्यादा होते हैं तो उसको ग्रेना बोलते हैं, अगर सिंगल है तो ग्रेनम बोलते हैं, ओके. अगर यू टेक द सिंगल ग्रेनम एंड दी सिंगल कॉइन, अगर एक आप स्ट्रक्चर देखें ग्रेनम का, ग्रेनम के एक स्ट्रक्चर का जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड, द थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर, ओके. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ग्रेना एंड द लैमेली विच कनेक्ट द डिफरेंट ग्रेनम टू ईच अदर, ओके. द लैमेली ही यहाँ पे जो थाइलेकॉइड और ग्रेनम को जोड़ती जो लैमेलीज हैं, लैमेली और ग्रेनम के अलावा जो पार्ट है उसके रेस्ट रिमेनिंग जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, क्योंकि द स्ट्रोमा और द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैव द डिफरेंट एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ओके. ये ऑटोनोमस है, मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक है, सॉरी, सो ऑटोट्रॉफिक है, दैट्स व्हाई दे सिंथेसाइज देयर फूड, ओके. सो for the synthesis of their food they have the different enzymes in the stroma. फिर से बोल रहा हूँ, their stroma have the different enzyme for synthesis of carbohydrate and protein, okay. वो carbohydrate and protein है उसमें for synthesis, okay, enzymes हैं, okay. So stroma में then the chlorophylls have the different types, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी. सो क्लोरोफिल ए में भी उसके कई सारे टाइप्स है, बी में भी उसके टाइप्स है, लेकिन उसमें हम अभी नहीं जाते. सो क्लोरोफिल और जितने भी ये पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स है थाइलेकॉइड के अंदर, ओके. सो जो थाइलेकॉइड की स्पेशलिटी क्या है, they receive the photo or they receive the sun rays from light, okay. They receive the light from sun, okay, and they transfer the solar energy into chemical energy, okay. They emit the electrons and all, and वो photosynthesis में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर में. लेकिन अभी तक आपको इतना याद रखना है कि थाइलेकॉइड के अंदर जो पिगमेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे रिसीव द सनलाइट, ओके. सो थाइलेकॉइड, सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस हैव टू फेज. फर्स्ट इज द photosynthetic part or phosphorylation part, and the second one is dark phase. First is the light phase and second one is the dark phase. The light phase is always occurs in the presence of light, and the dark phase is occurs during the light or absence of light. वो कभी भी फंक्शन कर सकता है, उसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं है. बट फोटो फॉस्फोराइलेशन और द फर्स्ट पार्ट है जो लाइट फेज, उसके लिए सन रेज और सनलाइट इज नेसेसरी. एंड वो कहाँ पे होती है, थाइलेकॉइड में होती है, ओके. सो लेमिलीज आर देयर, थाइलेकॉइड्स आर देयर एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, ओके. स्ट्रोमा है. देन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे उसका डीएनए होता है, वैसे ही ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी उसका सेल्फ डीएनए होता है, एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल्स. वो खुद से ही अपनी कॉपीज बनाते हैं, ओके. एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी 70S रिबोसोम है. साइटोप्लाज्म में 80S रिबोसोम है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है. बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही 70S रिबोसोम है, ओके. उसका खुद का डीएनए है which is not a part of genetics DNA. जेनेटिक का जो डीएनए वो उसके अलावा उसके पास जो डीएनए है, ओके. सो दिस ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट which is very simple organelles. So सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर white in color, that's why it's called leucoplast, that is colorless. Chromoplast have the different colors, yellow, orange, red and etc. Carotenoids is the main chief pigment, and chloroplast में chlorophyll is the chief pigment. और क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ओके.
एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनेल्स। आगे के चैप्टर में आपको क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है वो उसका डिटेल स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के और प्लास्टिड्स में सिर्फ इतना ही आज तक रखना है। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, यहाँ तक रखते हैं। ओके, गुड बाय।